Together. Salli ala Muhammad Ali Muhammad. अमीरुल मोमिनीन और फातिमतुज़ ज़हरा दोनों हस्तियों की ज़ात के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हादा इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलवात। First of all, I would like to give congratulations to all mu'mineen mu'minat for very auspicious occasion that we are Shia and followers of Ahlul Bayt ﷺ, and we become happy with any moment that is a happy moment in the life of Ahlul Bayt ﷺ, and we become sad with any moment that becomes sad moment in the life of Ahlul Bayt ﷺ. That means our pleasure is pleasure of Ahlul Bayt ﷺ. हमारी खुशी भी अहले बैत की खुशी है और हमारा गम भी अहले बैत का गम है। शिया उसको कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में ना उसकी खुशी अपनी खुशी हो और ना उसका गम अपना गम हो, वो अपने गम को भी अहले बैत पे फ़िदा करे और अपनी खुशी को भी अहले बैत पे फ़िदा करे। So today it's very auspicious occasion, and before I speak about this occasion, I've recited one of the verses of Surah Mubarakah Ar-Rahman, a beautiful surah. A surah that when you start reciting, you will not be able to leave that. Because after every verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. वो कौन कौन सी नेमात हैं जिनको तुम जुटलाओगे. So it's poetry as surah, a beautiful surah, a surah that when you recite you can remember all the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. एक ऐसी सूरह जिसने अल्लाह की तमाम नेमात को एक समंदर को कूज़े में समो दिया है. तमाम नेमात इलाही को एक कूज़े में समो दिया गया. All the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, they are being mentioned in this surah, and after mentioning any blessing, then Allah subhanahu wa ta'ala says, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. One of the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, that He said, مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. There are two oceans that merge together. I think I said in month of Ramadan that this term merge, this merge has come from Arabic. It is not English term. Quran Kareem ne kaha hai, Maraj al-Bahrain. And same term is used in English. Merge, merging something. Maraj al-Bahrain yaltaqiyan. There are two oceans that they meet together at a place.
So probably sometimes you visited physically, if you have seen ocean getting together. And in another place, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned there are two types of the ocean. One has sweeter water, another has salty water. These salty water and sweeter water, or sometimes black water and white water, they get together. Marajal Bahrain yaltaqiyan. This is one of the mystery of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये है कि उसने दो समंदरों को इकट्ठा कर दिया और उनके इकट्ठा होने के बावजूद उनको एक दूसरे के साथ मिलने भी नहीं दिया है. मरजल बहरैन यल्तक़ियान, both they meet together. बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान. But at the same time we have kept a boundary. You know the barzakh? We call barzakh after our life and before the day of judgment. That is called barzakh. A barrier. मौत के बाद से लेकर इंसान के महशर में महशूर होने तक के ज़माने को कहा गया है बरज़ख. लेकिन एक और बरज़ख भी है. बरज़ख कहते हैं एक पर्दे को, एक हायल को, यानी जहाँ पे समंदर दोनों मिले तो उसका मौजज़ा ये है कि समंदर मिलते भी है लेकिन एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होते, एक दूसरे को तजावुज़ भी नहीं करते हैं. दोनों के दरमियान एक दीवार बाकी है, दोनों के दरमियान एक लाइन मौजूद है. Anybody visited any ocean that you have seen? Anybody? You witnessed? Yes, some of you, alhamdulillah. It's really something to see, something to watch that and enjoy watching that. I have seen that with my eyes. That one side it's completely black water, another side it's completely white. On the Mexican Ocean, it's there. And they are merging together, they are running together. There is no such a boundary, but the boundary is being placed by Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. There is no wall, they are running together. Then any time you won't see that a black water goes to the white water and changes the white water, or the white water comes to the black water and changes the color of the black water. No. They are not going to do that, because that is one of the miracles of Allah subhanahu wa ta'ala. उसके मौजज़ात कायनात में बहुत ज़्यादा हैं. उसका ये चमकने वाला सूरज एक मौजज़ा है, रात को देखें तो सितारों को देखकर वो एक मौजज़ा है. उसके बड़े मौजज़ात हैं इस कायनात में, लेकिन उन मौजज़ात में एक मौजज़ा ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ, हम किनार दोनों बहते हैं लेकिन एक दूसरे पे तजावुज़ नहीं करते हैं. बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान. इनके दरमियान एक बरज़ख पाई जाती है जो कभी बगावत नहीं करती है. Whenever Allah subhanahu wa ta'ala mentions one of the blessings at that time, He says, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. After looking at this great mystery of Allah subhanahu wa ta'ala, are you going to refuse the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala? How you can reject the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala? कभी ये कहा गया कि जब भी ये आया पढ़ी जाए, ये कुरान पढ़ा जाता है, जब आइम्मा अलैहिस्सलाम के सामने ये आयत पढ़ी जाती थी, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, आइम्मा अलैहिस्सलाम इसके जवाब में कहते थे, ला बिशैइम मिन आलाइका रब्बी उकद्दिब. ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी किसी नेमत को इनकार नहीं करता. ला बिशैइम मिन आलाइका रब्बी उकद्दिब, ये इसका जवाब भी है. कलाम खुदा को पढ़ें तो कलाम खुदा को पढ़ने के बाद उसका जवाब दें बारगाह खुदा में, परवरदिगार मैं कभी तेरी नेमत का इनकार नहीं करता. इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम in the tafsir of the same ayah, Imam said there is a physical Bahrain. There are physical oceans and there is a spiritual ocean. Or we can say there is outer ocean and there is an inner ocean.
एक समंदर की ज़ाहिरी सूरत हाल है, एक समंदर का बातिन है। समंदर को देखकर हम ये देखते हैं कि इतनी क़ुव्वत और कुदरत रखने वाला एक समंदर जिसके अंदर एक और दुनिया मौजूद है। इन द ओशन देयर इज अनदर life of sea. So sometimes probably you read in your books, life of sea life. Sea life is another life. There is completely other wonder of the world. There are many wonders of the world inside the sea. But this is a physical sea and ocean. But there is a spiritual ocean that our sixth Imam says. In spiritual ocean, Allah subhanahu wa ta'ala gathered and merged two important oceans. One is ocean of Amirul Mu'mineen, and second is ocean of Fatimatu Zahra salamullah alayhi. जैसे उसने ज़ाहिरी समंदरों को एक दूसरे के साथ मिला दिया, वैसे दो अजीम समंदरों को एक दूसरे के साथ मिला दिया। एक तरफ से वो समंदर है इल्म और हिकमत का समंदर, और दूसरी तरफ वो इस्मत और तहारत का समंदर है। जब ये दोनों मिल जाएं तो तफसीर मरजल बहरैन बनते हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। Imam says, although in physical form of ocean there is a barzakh, there is something that is blocking them, that they cannot go over one another. Between these two oceans also there is another barzakh, there is another barrier, there is another curtain, and that is barrier of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. दोनों के दरमियान बरज़ख है, और वो बरज़ख रसूल खुदा की ज़ात है। सलवात पढ़ें आप हज़रात। Today I would like to discuss about divine marriage. You know, most of the time we use a term that marriages are being performed divinely. शादियाँ जो होती हैं आसमान पे होती हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। शादियाँ आसमान पे नहीं होती हैं, शादियाँ ज़मीन पे होती हैं। हम खुद शादी करते हैं, लेकिन कायनात में एक ऐसी शादी ज़रूर है। सुभान अल्लाह। कायनात में सिर्फ एक शादी ऐसी है कि जो ज़मीन पे भी हुई और आसमान पे भी हुई, जिसके मुताल्लिक जब ये शादी मुनाकिद होने लगी तो अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा, और जिब्राईल बारगाह रिसालत में आए, रसूल खुदा की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप खुतबा ज़मीन पे पढ़ें, अल्लाह ने आसमान पे इस शादी को मुनाकिद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान पे ये शादी हो चुकी है। हमने ये खुतबा ऑलरेडी इजरा कर दिया है। So we can see that this is a marriage that is being decided divinely, a divine marriage in this world. None of the marriages are divine. Rest of the marriages are with our choice. We make a choice. I don't say that this is the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, we put every blame to Allah subhanahu wa ta'ala. If any accident happened, then we say that, so this was pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So accident is not pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. He did not want to have it. Most of the time we make mistakes, and then it happens, and then we say to Allah subhanahu wa ta'ala. Or if we make mistake in choosing a wrong spouse, then we say, so what we can do? This was pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. No, that was our mistake. It wasn't pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ने कवानीन बयान किए, ज़वाबित बयान किए शादी के इंतखाब के लिए, और हुक्म दिया जब तुम अपने लिए किसी को स्पाउस के तौर पर इंतखाब करना चाहो, अपने साथ हमसर को इंतखाब करना चाहो, तो पहले हमसर की तमाम सिफ़ात को देखो। यही तो वजह है कि जब इन दो हस्तियों ने इंतखाब करना चाहा
तो पैगंबर अकरम इन दोनों हस्तियों के मुतालिक इस तरह इरशाद फरमाते हैं, लौला अलीयुन लमा कानत लिफातिमता कुफुन, अगर अली ना होते तो फातिमा के लिए कायनात में कोई हमसर मौजूद नहीं था। नारा हैदरी, भारत मत जनाब सईदा बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। Marriages are various kinds of marriages. Sometimes it's just a physical marriage, that a body is meeting with another body. A physical form is getting married with another physical form. Or sometimes a name is marrying another name. Another time it's possible people they say that it's a family marriage. We have a family marriage. So one family is marrying another family. They are getting together. But there is another marriage, brothers and sisters. That is what Islam wants to have. That is real marriage. That is marriage of the qualities. सिफात की शादी, बाज़ औक़ात बदन की शादी है, बाज़ औक़ात नाम की शादी, असल शादी नहीं है लेकिन नाम की शादी है, लेकिन एक काम की शादी है। काम की शादी वो होती है कि जहाँ पर सिफात मिलने लगें, जहाँ पर कमालात मिलने लगें। अमीरुल मोमिनीन और सैयदा के दरमियान जो शादी हुई है, यहाँ पर ना नाम की शादी थी, ना बदन की शादी थी, ना जिस्म की शादी थी, यहाँ पर कमालात जमा हुए हैं। The most important thing that one needs to see, that is quality of other side. अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चलिए हम यासिर भाई के लिए सलावत पढ़ लें एक मरतबा। I hope that Yasir bhai brought some niyaz. वापस कब आएंगे? सामने आ जाए। पहले भी न्याज दी गई है, लेकिन वो ऐसे बिस्किट थे कि जो गला कोटू बिस्किट होते हैं ना, इसको यानी अगर खा ले तो एहतमाल है कि किसी की जान निकल जाए, किसी का सांस रुक जाए। सलवात पढ़ ले एक मरतबा। लेकिन अच्छी बात थी कि जाबिर भाई ने 7 चाय का भी इंतज़ाम कर लिया था। At least there was tea as well. So, जाबिर भाई के लिए भी सलावत भेजना। Allah. So just to enjoy a little bit. When we look at real marriage and concept of marriage in Islam, it's been said you have to look at the qualities and see the piety of other side. Islam says if somebody comes towards you with the piety, asking for the marriage, do not refuse him. Because if you refuse the qualities, then there will be corruption on the earth. And I wish that on the day which is like first of Dhul Hijjah, if we organize a marriage seminar and look at this marriage, that is exemplary marriage, इस शादी को देखा जाए कि जो नमूना है शादियों का, इस इज़्दिवाज को देखा जाए जो तमाम दुनिया की शादियों के लिए नमूना है। एक तरफ नमूना अमल है अमीरुल मोमिनीन का, दूसरी तरफ नमूना अमल है फातिमतुज़ ज़हरा का। ये दो अमल और कमालात के मजमूए एक दूसरे के साथ जमा हो रहे हैं। So if you like to choose somebody, at that time you must see very first thing, that is the piety, equality, being equal. That is why it's been said, Lawla aliyun lama kanat li Fatimata kufwun. It is narrated that many other people, so they are being misled. They started thinking that, of course, Prophet, peace be upon him, has become on the leadership position, and he is a very important personality. Now we, the people, those who are wealthy people, they started going to the house of Prophet, peace be upon him. And it is said that the Holy Prophet, peace be upon him, whenever somebody comes, at that time he used to say that I would like to ask my daughter. I would like to ask my daughter. And Prophet went to the Bibi,
asking her, she used to turn her face. So there were many, बहुत से ऐसे थे कि जिनको ये गुमान हो गया था कि हमारी भी शादी हो सकती है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि अल्लाह ने जब ज़हरा को पैदा किया तो कुफ़्व ज़हरा को भी पैदा किया है, हमसर ज़हरा को भी पैदा किया है, ऐसी हस्ती को पैदा किया है कि जो कमालात में और फ़ज़ाइल में फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ हमसर बन सके. So she used to turn her face, and Prophet peace be upon him comes back and he used to say that I'm sorry, I cannot accept it. So see, this is one of the most important tradition, that whenever you like to marry your daughters, you have to see the pleasure of your daughter. Don't force them. Sometimes we start asking, this is my family member, they are our relatives, let us marry them. Or start forcing our daughters and children. Because this is my pleasure, you have to get married with that person. That is wrong. We should not do that. देखिए रसूल खुदा की ज़िंदगी में अगरचे पैगंबर ख़ातमुल अंबिया हैं, पैगंबर वो हस्ती हैं कि जिन पे नबुव्वत और रिसालत ख़त्म हो रही है, लेकिन इस अजीम हस्ती के होते हुए जब भी पैगंबर ने बीबी के मुतालिक फ़ैसला करना चाहा तो सबसे पहले अपनी बेटी से जाकर पूछा. और मतलब एक बेटी की अपनी अहमियत है, उसकी रज़ा और रग़बत का होना ज़रूरी है. So one or two people, they came to Prophet peace be upon him. After that they decided that let us go to somebody that Prophet is not going to refuse him. आइए अब उसकी बारगाह में चलते हैं कि जिसको देख कर रसूल खुदा को खुशी महसूस होती है. जब वो ज़ात महफिल में आ जाए तो पैगंबर अकरम उसके एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं. वो हस्ती की जिनके मुतालिक पैगंबर फरमाते हैं लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्मो का जिस्मी. ए अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है. व नफ्सो का नफसी, तेरी जान मेरी जान है. वो अली जो जान रसूल खुदा है. So they came asking Amirul Mu'mineen, they said, Ya Ali, we went to Prophet peace be upon him, he just refused. And we think that he's not going to refuse you. You have to go and try. No, Amirul Mu'mineen comes. So there is another thing that I would like to mention that you can take as a lesson. So the very first time he came for engagement, so it is said that Amirul Mu'mineen comes to the Prophet peace be upon him and he sits quiet. He could not ask Prophet peace be upon him. So this modesty, ये शर्म व हया इंसान की खूबियों में से है, फितरत इंसानी में है, फितरत इस्लाम में है. ज़्यादा मुँह खोल कर बात करना हर जगह अच्छा नहीं होती है. बसा औक़ात खामोशी खुद बहुत सी चीज़ों को बयान करती है. वो ज़ात की जो पैगंबर की बारगाह में कभी मुख्तलिफ सवाल किया करती थी, जब वो पैगंबर की बारगाह में अपना रिश्ता तलब करने के लिए आ गई तो अब खामोश हो गए. वो हस्ती की जो मेंबर सलूनी पे बैठकर ये कहती थी सलूनी क़ब्लन तफ़क़िदूनी, लेकिन जब अपना सवाल करने के लिए, अपनी ज़ात के लिए सवाल करने के लिए आए तो खामोश हो. थोड़ी देर खामोश बैठे. He was silent for a while. And suddenly Prophet peace be upon him said, Ya Ali, did you come with any request? Would you like to get married? So that means Prophet peace be upon him, his personality, that Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. रसूल खुदा की ज़ात उस वक्त तक गुफ्तगू नहीं करते जब तक अल्लाह की तरफ से वाही नाजिल ना हो जाए. मालूम होता है कि अमीरुल मोमिनीन के आने से पहले जिब्राईल ने यह खबर दे दी थी कि अली आने वाले हैं, उनकी खामोशी में भी रज़ा है. So when Prophet asked, Amirul Mu'mineen said, of course, I would like to get married. And Prophet said, do you have any means?
And Amir al-Mu'mineen said, Ya Rasulullah, I don't have any means. I have a horse, I have a sword, and I have a shield. These are only my all properties that I have. यहाँ पर अली के कमालात को देखें, कमाल अमीरुल मोमिनीन को, शुजाअत अमीरुल मोमिनीन को देखें। रसूल खुदा ने फरमाया कि घोड़ा भी एक शुजा के लिए ज़रूरत है, तलवार भी एक बहादुर इंसान के लिए मुकाबला करने की ज़रूरत है, लेकिन अली तू ऐसा बहादुर है कि तेरे लिए किसी ज़रा की ज़रूरत नहीं है। तू ज़रा के बगैर भी जंग कर सकता है। लिहाजा पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, अली जाकर ज़रा को बेच दो। So what was the reason that he asked not to sell sword, not to sell horse, but sell the shield? So Amirul Mu'mineen goes and he sells the shield and comes back. And the money was divided into two parts. One of the part it was considered as dowry, and second part it was considered to buy some of properties to give jahiziyah. So he gave to Prophet, peace be upon him. Whatever he sold, he gave to Prophet, peace be upon him. Ya Rasulullah, this is the money that I bought. And Prophet divided it. Some of the money he gave to Bilal for walima. So walima is mustahab. It is recommended in Islam that after marriage, walima has to be given. Walima is recommended for few things. After birth of child, after the marriage, after somebody comes from Hajj or Ziyarat, there is another walima that is recommended. So if Allah subhanahu wa ta'ala, अगर खुदा ने तौफीक दी, कभी ज़ियारत पे जाएं, कभी हज पे जाएं, तो हज से आने के बाद वलीमा दें, मोमिनीन को बुलाएं, अपनी खुशी का इजहार करें। ये मोमिनीन को खाना खिलाना असल में शुक्राना नेमत है। जब पैगंबर ने जहेज़ को जमा करना शुरू किया, बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल जाओ जाकर ज़हरा के लिए जहेज़ ख़रीद के लाओ। जहेज़ की तमाम आदत को बयान नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ, आज मसलन जहेज़ के लिए हम शादियों को डिले कर देते हैं, इतनी मुद्दत लगाते हैं, हम अपनी बेटी के लिए जहेज़ जमा कर रहे हैं, लेकिन देखा ख़ातमुल अंबिया ने उस बेटी की शादी करना चाहिए जो सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, कायनात की ख़वातीन की सरदार। उस बेटी के लिए जब जहेज़िया तैयार किया तो बहुत थोड़ी मुद्दत में एक मुख्तसर जहेज़िया जब आके सामने रखा गया तो हज़रत की आंखों में आंसू आ गए, रसूल खुदा की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मैं ऐसी बेटी के जहेज़िये को देख रहा हूँ जिसके जहेज़िये में अक्सर चीज़ें मट्टी से बनी हुई, अक्सर चीज़ें ऐसी जो मट्टी से बनी हुई है। मालूम होता है कि ये सादगी के साथ शादी करना, ये सुन्नत ज़हरा है, ये सुन्नत रसूल खुदा है। शादियों को न माल बनाने के लिए, न महरिया जमा करने के लिए डिले करें। शादियों को सिर्फ एक सबब से डिले किया जा सकता है, सिर्फ एक सबब से देर की जा सकती है, और वो हमसर का मिलना, कुफ्व का मिलना। जब तक न मिले, अगर ज़िंदगी में न मिले, अगर कुफ्व न मिले, तो मरियम की तरह बग़ैर शादी के तो रहा जा सकता है, लेकिन नाअहल के साथ शादी नहीं की जा सकती है। नाअहल के साथ शादी करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि नाअहल ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। अब हज़रत ने जब जहेज़ को जमा कर लिया, और यही जंग बदर, चुके आखिरी अय्याम जो ज़िकादा थे, जंग बदर के ख़त्म होने के बाद हज़रत ने दोनों को जमा किया। अब जब हज़रत ने खुतबा पढ़ना चाहा, तो जो ही खुतबे के लिए आमादा हुए, तो ये वो मरहला था जब जिब्राइल ज़मीन पे आए, और जिब्राइल ने ज़मीन पर आकर रसूल खुदा की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, आप ज़मीन पे खुतबा पढ़ें, अल्लाह ने ज़हरा और अली की शादी आसमान पे कर दी है। When Prophet, peace be upon him, recited the khutbah, at that time he asked both of them to get closer, and he held the hand of Fatimatu Zahra and put that hand in the hands of Amirul Mu'mineen.
And then he said one of the phrases. He said, "Ni'ma az-zawjatu Fatimatu az-Zahra." कायनात में अगर तमाम ख़वातीन को, तमाम अज़वाज को जमा कर लिया जाए तो सबसे बेहतरीन ज़ौजा फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। और फरमाया, निअमल बालु अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अगर दुनिया के सारे शौहरों को जमा कर दिया जाए तो सब शौहरों में से बेहतरीन शौहर अली इब्न अबी तालिब है। ये जुमला कहकर हज़रत ने शादी के रस्म को मुकम्मल किया। फिर हज़रत ने सवारी मंगाई। सवारी मंगाने के बाद हज़रत ने अपनी बेटी को सवारी पे सवार किया। सलमान को हुक्म दिया, सलमान मेरी बेटी की सवारी की लगाम को पकड़ो। फिर ख़वातीन कुरैश को जमा किया, हाशमी ख़वातीन को जमा किया। सारी बीबी के इस सवारी के इर्द गिर्द जमा हुई। इस ख़ास रौनक के साथ बीबी की सवारी चलने लगी अमीरुल मोमिनीन के घर की तरफ। अगरचे हम जब वो कभी बीबी की शादी को बयान करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में कहीं पे शादी हुई हो या किसी पाकिस्तान के किसी महल्ले में, किसी देहात में शादी हुई हो। वहाँ पे सेहरा पढ़ने लगते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने भी सेहरा पहन लिया, फातिमा ज़हरा ने भी सेहरा पहन लिया। अगर बाज़ औक़ात ये ख़यालात की शक्ल हो तो उस सूरत में तो मसला नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात मुमकिन है यानी हम उनको एक आम दूल्हा, एक आम दुल्हन की तरह, यानी एक बच्चा जो सुनने वाला हो तो वो सुनकर ये समझेगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पाकिस्तान किसी देहात में कोई शादी हुई है और उसमें कुछ मिरासी भी थे और कुछ उन्होंने गीत गाने शुरू किए। नहीं, अमीरुल मोमिनीन की शादी अगर आसमान पर हुई है तो फरिश्तों ने खुशी मनाई है, हुरान जन्नत ने खुशी बनाई है, जन्नत को सजाया गया है, अर्श इलाही को सजाया गया है। जिसके कसीदे अल्लाह की ज़ात पढ़ती है वो अली व बतूल है। आइए बारगाह खुदा में दुआ करते हैं। परवरदिगारा मोहम्मद व आल मोहम्मद के तुफ़ैल आज के इस दिन को हम सब के लिए बायस बरकत करार दें। परवरदिगार मोहम्मद व आल मोहम्मद के सदक़े दुनिया भर में जितनी शादियाँ हो चुकी हैं उनमें अली व बतूल के तुफ़ैल बरकत नसीब फरमा, उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमें अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अली व बतूल अलैहिस्सलाम का हमारे रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा। परवरदिगारा हम सब के दिलों में मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन और फ़ातिमतुज़ ज़हरा नसीब फरमा। एक लम्हे के लिए भी इन दोनों के दामन से मुनक़ते न फरमा। इस दुनिया से उठें तो हमें अली व बतूल के साथ उठा। परवरदिगारा कब्र में अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत नसीब फरमा। बरोज़ महशर हमें उनके साथ महशूर फरमा। लिवाए हम्द के तहत हमें उठा। परवरदिगार बेहिश्त में अमीरुल मोमिनीन और फ़ातिमतुज़ ज़हरा के क़ुर्ब व जवार में जगह नसीब फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आल मोहम्मद के सदक़े इमाम ज़माना का जल्द ज़ुहूर फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। परवरदिगारा हमें इमाम ज़माना के कदमों में शहादत नसीब फरमा। मौत दे तो मौत शहादत अता फरमा। बेजाह मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए दुआए इमाम ज़मान पढ़ते हैं सब मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हादिहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात। एक मरतबा बुलंद आवाज़ सलवात पढ़ें।